Hello students, this is Sangeeta Vishwakarma and welcome to all concepts of chemistry. In our last class, we discussed how to balance the chemical reactions. I taught you two methods to balance chemical reactions and equations, right? So today we are going to start a next topic, that is types of chemical reactions. It's an important topic from exam point of view. But examiner never asks a direct question, the types of chemical reaction and that reaction and this reactions. He is giving you some twist and now new pattern. Actually, he will ask A is a reactant when he combine or when he reacts with the B and form that product. And he can ask in another way, when A and B reacts, A and B are known, right? And with react A and B and form the C. What is the product C, right? So in this way, he can ask you many questions from any type of the chemical reaction. So we will start a topic, types of chemical reaction. First reactions is combination reaction. As the name is suggested, combination. Combination means combine, किसी भी चीज को कंबाइन करके जो बने. जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं किचन से. मम्मी ने सब्जी बनाई. सब्जी बनाने के लिए मम्मी ने सारे स्पाइसेस उसमें मिक्स किए, वेजिटेबल्स मिक्स की, वाटर मिक्स किया एंड इन सब को, इन सारे इंग्रेडिएंट को, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद सब्जी बन गई. तो दैट इज एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. I will tell you by chemical examples. First is combination reaction. What is a combination reaction? When two or more reactants, when two or more reactants react with each other and forms new substance, right? We can take an example. When calcium oxide react with water, then it forms calcium hydroxide, right? This is known as quicklime, and this is known as slag lime. We have discussed in previous classes. I am giving you another example. Then calcium hydroxide react with, that is a slang time, react with CO2, that is carbon dioxide. Then it forms calcium carbonate plus water. This calcium carbonate is looking brighter. आपने देखा होगा कि जब हम 4 वॉल के ऊपर पेंट करते हैं इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो 2-3 दिन के बाद कलर ज्यादा ब्राइटर दिखाई देता है. तो रीजन क्या है कि वो एटमॉस्फेयर में जितना भी CO2 है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एब्जॉर्ब करके अपने सराउंडिंग से, और वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है जो कि ब्राइटर दिखाई देता है. अनदर एग्जांपल, when hydrogen react with oxygen and form water. इधर हाइड्रोजन है, बैलेंस किया, then 2 water molecule. यहां पर भी कितने रिएक्टेंट्स हैं आपके? 1 and 2. यहां पर भी 1 and 2, 1 and 2. बहुत सारे हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. I am just giving you example how they are combined together.
Now next one is methane. CH4, that is a methane when react with oxygen. It is a combustible substance, right? Then combine करने के बाद CO2, any combustible substance क्या देता है? CO2 and water. Now balance the chemical reaction. Now it is balanced, right? अब एक जनरलाइजेशन कर देते हैं. कॉम्बिनेशन, जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, whenever there will be a combination reaction, the energy will be released. So in last example, जब मीथेन का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, because methane is a combustible substance, then रिएक्शन कराने के बाद CO2 and water के साथ साथ क्या निकला? हीट निकला. हीट को हम डेल्टा से शो कर देते हैं. द लिबरेशन ऑफ हीट, किसी भी रिएक्शन में हीट का लिबरेशन होना, दैट इज अ टाइप ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस जो आप इन्हीं के साथ पढ़ेंगे. इट इज नॉट अ सेपरेटली कि मैं आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगी. जब भी रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे तो वहां पर क्या होगा? एनर्जी निकलेगी, हीट रिमूव होगी, लिबरेट होगी. दैट इज नोन एज exothermic. So in exam they can ask you what is the example of the exothermic reactions. So in a combination reaction, when two or more reactants combine together, they release energy. That is a type of the that is example of the exothermic reaction. किचन में भी है आपके यहाँ पे जो गैस आती है एलपीजी, जो आपकी किचन में यूज होती है, आपने उसको लिट किया, लिट करने के बाद क्या हुआ? हीट एनर्जी निकली. तो दैट इज अ कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस इन योर सिलेंडर. देन आफ्टर इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इट रिलीज हीट एनर्जी. दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर लिबरेशन ऑफ हीट होता है, राइट? तो नेक्स्ट आप इसे नोट कीजिए. और एक और अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं, जब आप फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे के, तो क्या होगा? कुछ गलतियों को हम इग्नोर कर देते हैं. अगर हमें फ्रेंड के ऊपर गुस्सा भी आता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं. तो दैट इज अ टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि आपको वहां से एनर्जी निकली. गुस्सा आया, गुस्सा इज अ टाइप ऑफ द एनर्जी, तो हमने वो उसको क्या कर दिया? नजरअंदाज कर दिया, राइट? सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन. Decomposition. As the name suggests, decomposition means break होना. Break in two or more products. यानी एक सिंगल सब्सटेंस का टू और मोर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाना. उसका एक और एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल देती हूँ. नंबर 1 एग्जाम्पल है आपका, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल लिया था, इज हीटेड, देन कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 आर फोम्स, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल, lead nitrate is heated. The product will be lead oxide plus nitrogen oxide plus oxygen. Lead ऑक्साइड, राइट? और ये आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यहां पर ये देता है आपका ब्राउन फ्यूम्स या वेपर. तो यहां से एक रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट बने? 3. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, AgCl, silver chloride. When it is heated, then silver plus chloride. Then Ag यहाँ क्या है? इसका कलर क्या है? यहाँ पर सिल्वरी कलर,
यहां पर हमें क्या मिला, मैटर मिला है, मैटर है, तो मैटर का कलर क्या है, इसका ग्रे कलर है, ग्रे कलर, राइट। तो अब जनरलाइज करके ईच एंड एवरी रिएक्शन वी आर गिविंग हीट टू ब्रेक इट, राइट। इन दिस one reactant and two products, one reactant, three products, one reactant, two products. So these kind of the reaction in which we give energy, we give heat to break a reactants into two or more products. These type of the reaction are known as endothermic reaction. जो तोड़ने के लिए जब भी हम उसे तोड़ेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब हम रिएक्शन को कंबाइन करेंगे तो एनर्जी लिबरेट होगी। तो यहां क्या कह सकते हैं, जिस रिएक्शन में दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी हीट इज गिवन टू कंप्लीट द रिएक्शन, दीज टाइप ऑफ द रिएक्शन आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए यहीं से कि ये रिएक्शन दे दिया और आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछा है। इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डीकम्पोजिशन प्लस एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, एक रिएक्टेंट का स्प्लिट्स हो रहा है टू एंड मोर प्रोडक्ट्स के अंदर, और प्लस क्या लेना पड़ रहा है, हीट। तो जहां हीट ली गई है वो है एक्सोथर्मिक। तो एग्जाम में दो ऑप्शन है, तो हमारा दोनों ऑप्शन वाला राइट होगा, डीकम्पोजिशन प्लस एंडोथर्मिक। एक और एग्जांपल दे सकती हूं मैं इसका, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप दो फ्रेंड हैं, राइट, दो फ्रेंड्स हैं आप, और कोई तीसरा आपकी फ्रेंडशिप के बीच में आना चाहता है। तो एक ही तरीका है फ्रेंडशिप तोड़वाने का कि वो आपके दोस्त के बारे में आपके कानों में कुछ कहे, कि आप मतलब चुगलियां लगाएं एक दूसरे के बारे में। तो वहां क्या कर रहा है, एनर्जी देनी पड़ रही है, किसे, आपके फ्रेंडशिप के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो इससे याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, राइट। तो नोट करिए आप। फिर थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reaction. A reaction in which more reactive replaces the less reactive एलिमेंट, यानी जो ज्यादा पावरफुल है वो लेस पावरफुल को वहां से रिप्लेस कर देगा। इससे पहले इसे भी समझते हैं एग्जाम्पल से। टग ऑफ वॉर एक गेम होता है जिसमें दोनों साइड कुछ कुछ पार्टनर्स होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, 4 पार्टनर्स इधर है, 4 इधर है प्लेयर्स। अब वो एक रस्से को खींचते हैं, रस्से को दोनों साइड है तो 4-4, लेकिन कौन जीतेगा, जो उनमें ज्यादा पावरफुल होगा। सेम वही गेम यहाँ है। क्या करना है, हमें रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है। सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इन सब में ये 3 जो एलिमेंट होते हैं ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी ना के बराबर होते हैं। इसीलिए इनके क्या बनाए, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, यानी आपके गहने बनाए जाते हैं। जैसे गोल्ड के बनाए जाते हैं। अब हम एटमॉस्फेयर में एक्सपोजर होता है, सब लोग पहनते हैं, गोल्ड पहनते हैं, सिल्वर पहनते हैं और प्लेटिनम भी पहनते हैं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो ये एटमॉस्फेयर में किसी भी नॉन रिएक्टिव है, बहुत कम ना के बराबर रिएक्शन करते हैं, अदरवाइज इसीलिए इनके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं हम सबसे पहले आयरन।
आयरन सॉलिड की हमने रिएक्शन कराई कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या होगा? अब सीरीज में देखना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने इसको इजी बनाने के लिए अपने ही कुछ वर्ड्स दिए हैं। आप इसको इस मेथड से भी लर्न कर सकते हैं और जैसा चाहें अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट इट्स अ बेस्ट वे। ये मैं 9th क्लास में थी, जब से मैंने बनाया हुआ है तब कोई आइडिया नहीं था टीचर बनूंगी। देखिए, के इज अ सोडियम, के कालू ना, वो सॉरी, के इज अ पोटेशियम, कालू, Na सोडियम, नाथ, का, मैग्नीशियम, मागे, एल्यूमिनियम, आलू, जिंक जिसमें आयरन को फेरिट भी बोलते हैं, फीका, लेड, पकवान, पी से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन है, कॉपर, कॉन, मरकरी है, एच से शुरू होता है, सिल्वर आगे, ऑरेट इज अनदर एग्जांपल ऑफ द गोल्ड, आया, प्लेटिनम पहले, कालू नाथ का मांगे आलू जिसमें फीका पकवान है, कौन है आगे, आया पहले। इट्स अ सिंपल वे टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपने लर्न कर ले तो आप इजीली सारे क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के इजीली कर लेंगे। अब देखिए, फेरेट यहाँ है, यानी ये क्या है? आयरन, कॉपर। अब कॉपर और आयरन में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है? कालू नाथ का मांगे आलू जिसमें फीका, फेरेट यहां है, ठीक है। पकवान है पकवान है कौन? कॉपर। तो फेरेट क्या है? आयरन क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है देन कॉपर। तो क्या करेंगे, जो मोस्ट रिएक्टिव है वो इसको यहां रिप्लेस कर देगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन देखिए, जिंक। जिंक ग्रेन्युल्स होते हैं, आपने टेस्ट ट्यूब में भी करने के लिए देंगे, 10th क्लास में देते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। जिंक का कुछ टुकड़ा है, उसके ग्रेन्यूल्स दे दिए, कुछ कुछ पार्टिकल्स छोटे छोटे, और उसमें कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालने के लिए आपको दे दिए। तो वहां से ऑब्जर्व करके बताना है व्हाट विल हैपन देन कॉपर सल्फेट। तो क्या होगा? अगेन देखिए, कॉपर एंड जिंक। जिंक कहाँ है आपका? यहाँ है, और कॉपर का है नीचे। तो अगेन क्या है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो क्या करेगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को यहां से रिप्लेस कर देगा और अपने आप आ जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अनदर एग्जांपल, lead लिया solid, when lead react with copper chloride then what will form? देखिए, पहले फॉर्मेशन से पहले देखिए, lead यहाँ है आपका, कॉपर अगेन नीचे है, तो जो जितना ऊपर the upper sides elements are more reactive than lower one. So observe, where is the copper? Copper is here and lead is here. So lead is more reactive than copper. So what will happen? Lead will replace the copper. So it forms lead chloride plus copper. Lead chloride. Right? So these are the example of the displacement reaction. In exam they can ask many questions, but one thing is important, that is reactivity series. अगर आपको reactivity series learn है, you can definitely do all type of the question from the displacement reaction. Next one is fourth one, that is double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, कि मैं एग्जांपल देती हूँ, ए बी प्लस सी डी, राइट। ये अलग अलग दो क्या है यहाँ पर, एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है, राइट। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज है कि ए क्या करे, ए किसके साथ, डी के साथ, और प्लस सी बी के साथ रिएक्शन कर ले, या एक ये पॉसिबिलिटी है कि ए जो है वो सी के साथ और प्लस
बी और डी, बी और डी। यानी अब क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट। जो इनके साथ ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड में ब्रेक होकर एक दूसरे के साथ कंबाइन रखने की कैपेसिटी रखते हैं, क्या इनकी भी प्रोबेबिलिटी होती है। इसके एग्जांपल लेते हैं, सोडियम सल्फेट व्हेन रिएक्ट विथ बैरियम क्लोराइड it forms barium sulfate plus sodium chloride, right? ये बैरियम सल्फेट जो है ये क्या देता है, व्हाइट पीपीटी, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट मीन्स नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड। और ये क्यों होता है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाइट वो बैरियम सल्फेट गिव व्हाइट पीपीटी, रीजन क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैरियम एंड sulfate ion, right? Due to presence of barium and sulfate ion. So today topic is almost completed. Next video will be on the topic of oxidation and reduction, and we will do the oxidizing agent and reducing agent, which is very important, and we will almost complete the chapter, and then next we will start the another chapter. So till then keep watching and keep learning. और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।